भाता रहे खुदा. Lord, whatever we do be pleasing to you alone, Father. Thank you, Lord. We love you, Lord. Thank you, Father. Death could not hold you. The will tore before you. You silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing can stand against. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Your name is beautiful. Your name is wonderful. Your name is powerful, Lord. We love you, Lord. We thank you, Father. We thank you for we know you hold the future, Lord. Thank you, Lord. Because He
जीते हैं क्योंकि तू जिंदा परमेश्वर है खुदा। तू जिंदा है इसलिए हम कल को देख पाते हैं खुदा। तू जिंदा है इसलिए हमें कोई डर नहीं है खुदा। तू जिंदा है और हमें पता है कि भविष्य तेरे हाथों में है खुदा। And nothing can harm us. No weapon formed against us shall prosper. Thank you, Lord. Thank you, Father. We love you, Lord. We offer you this worship, Father. Accept it as a pleasing sacrifice. Thank you, Lord. In Jesus' name I pray, amen. Happy Resurrection Day. A young man on the right side, clothed in a robe of white, he said to them, "Do not be amazed and terrified. You are looking for the Jesus of Nazareth, who was crucified, but he has risen." Hallelujah. He was crucified, but he has risen. Really, he has risen in your life? You ask yourself. परमेश्वर बहुत अच्छा है। एक जवान यानी स्वर्गदूत जो श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे था, उसने कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है। आज अपने आप से पूछो कि सच में वो मेरे जीवन में जी उठा है कि नहीं। हालेलुया। It is written in Mark 16th chapter 6th verse 7th verse is, but be going मतलब परंतु तुम जाओ। You will see him there. तुम उधर उसे पाओगे। हालेलुया। Like that in our life we should be going on. He is with you. हालेलुया। प्रभु बहुत अच्छा है। जीवन में भी हमें ऐसा ही यूं ही चलना है। वो हमारे साथ है और as he told you he will be there means हमसे पहले वो वहां पहुंचता है। जहां हमें कदम रखना है उससे पहले वो कदम रखता है कि हम गिर न जाए। हालेलुया। God is good. So praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Oh my soul, while I live will I praise the Lord. I will sing praises to my God while I have any being. या की स्तुति करो हे मेरे मन, या यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। Here it is written while I live. जब प्रभु ने आपको अभिवचन दिया है कि मैं आऊंगा और तुम्हें लेकर जाऊंगा, तो जब यीशु मसीह हमें ये वायदा करता है कि मैं आऊंगा और तुम्हें लेकर जाऊंगा, तो हम हमेशा प्रभु की स्तुति करना चाहिए, है ना। हम क्योंकि कभी मरेंगे नहीं, हम प्रभु में हमेशा जीवित रहेंगे। प्रभु आएगा, हमें लेकर जाएगा। So always praise him, always praise him. Keep your all the things aside. That will not help you. वो आपको मदद नहीं करेंगे आपकी चीजें। जीवितों में रखा है, कब्र में नहीं रखा, क्योंकि कब्र में मैं उसकी स्तुति नहीं कर सकती। We can't worship him in tomb. तो परमेश्वर ने हमें इसीलिए जीवित रखा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आइए, ये समय है और आज हमने गाया Because he lives, I can face tomorrow. इसलिए क्योंकि वो जीवित है, मैं कल को सामना कर सकता हूँ। All fear has gone because he lives, so all fear has gone. वो जीवित है
इसीलिए मुझ में से हर डर, हर बैर चला गया है, बिकॉज आई नो ही होल्ड्स माई फ्यूचर। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूं कि उसने मेरे भविष्य को पकड़ के रखा है। तो प्रभु इतना इतना विश्वसनीय है, तो हम कितना विश्वसनीय होना चाहिए। उसने आपके कल को, आज को और कल को पकड़ के रखा है। हालेलुया। आइए, जिस किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को महिमा करे और अपने गवाही को बांटे। Last week I had very bad urine infection and my stomach was paining really badly. I prayed to God and I thank God that He healed me completely. He answers all my prayers because He is a way maker, miracle worker. He's a promise keeper. And I thank God that He healed me from head to toe. I'm completely healed now. By His stripes I'm healed. And I thank God. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को सारी महिमा हो, वही उसके योग्य है। और हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि फेथ को परमेश्वर ने पूरी तरह से चंगा किया। बहुत ही बुरी तरह से यूरिन इन्फेक्शन था, हर इन्फेक्शन को परमेश्वर ने निकाला, बिकॉज ही पेड द प्राइस, क्योंकि उसने पूरी कीमत चुकाई है। और सच में उसने हम सबों के लिए कीमत चुकाई है। हालेलुया। वी कांट पे बैक। हम कुछ भी करें, अपने आप को दे दे, अपना ब्लड भी दे दे, बट वी कांट पे 1% ऑफ दैट पेमेंट आल्सो। हम 1% भी उसका, अगर हम आखिरी बूंद भी हमारा दे दे, जो लायक ही नहीं है, हम उसका 1% भी कीमत चुका नहीं सकते। गॉड इज सो गुड। आइए, और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को महिमा दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। 2020 मध्ये माझ्या मुलीची अशी दुखणं झालं होतं, तेव्हा थायरॉइड झाला होता घशाचा, आणि थायरॉइड झाला, खूप आजारी पडली. आणि त्या दुखण्यामध्ये माझी मुलगी म्हणजे मला फोन केला. त्या दिवशी तिचं ऑपरेशन, फेब्रुवारीच्या 11 तारखेला ऑपरेशन, तर 10 तारखेला मी इथून निघाले, तर 10 तारखेला माझं जाणं झालं नाही. तिचं ऑपरेशन झालं 10 तारखेला आणि मी गेले 11 तारखेला. तर मग 11 तारखेला गेलं तर डॉक्टर म्हणे की ऑपरेशन केलं, तर मग थायरॉइडचं ऑपरेशन झालं. 10% माझ्या मुलीला बसले. मी प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देते, कारण प्रभू आपल्यासाठी वधस्तंभावर गेला, खेळे त्याच्या पायात ठोकले, काटेरी मुकुट घातला आणि कुशीत भाला भोकासला. आणि या दुःखीत जीवन आपल्या पित्यानी, माझ्या पित्यानी सहन दुःख केलं, केवळ माझ्यासाठी आणि माझ्या परिवारासाठी, तुमच्यासाठी. आणि माझ्या मुलीचे ऑपरेशन एकदम छान झालं, परमेश्वराने आशीर्वादित केली. आणि मी माझ्या मुलीला म्हणलं, तुझी तब्येत कशी आहे? तर म्हणे ठीक आहे. मी जेव्हा तिकडे गेले गुजरातला, 4.5 महिने राहिले. पण ज्या वेळेस मला माझ्या मुलीचा फोन आला, त्यावेळेस म्हणजे मला एकदम म्हणजे मी कमजोर झाले. कमजोर झाल्याच्या नंतर मग माझा मोठा मुलगा मला शेलमून म्हणतो, आई तू कमजोर होऊ नको, प्रभू आशीर्वाद देणारा परमेश्वर आहे. आणि मग मी म्हणलं बरोबर आहे, परमेश्वर आपला आशीर्वाद देतो. सर्वांना फोन केले, फोन लावले, माझ्या भाषेला विजू यांना फोन लावला, त्यांनी प्रार्थना केली. सगळे आम्ही प्रार्थनेत असताना माझ्या मुलीचं ऑपरेशन चांगलं झालं. 10% तिच्या घशाला बसले. प्रभूच्या नाव धन्यवाद देते. एवढ्या ऑपरेशनामधून आज माझ्या मुलीला त्यांनी एकदम नॉर्मल, माझी मुलगी देवाची सेवा करेगी. प्रभुचे नाव धन्यवाद है। हमारी बहन को चंगा किया और उनका ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सच में उसके कोड़े खाने से हम सब चंगे हो गए थे और उसके लहू बहाने से हम शुद्ध किए गए थे। उसने 2000 साल पहले हमें चंगाई दे दी। हम धन्यवाद करते प्रभु। हेलो, माझी साथी अशी आहे की माझी जेव्हा एक्झाम होती तेव्हा मला
म्हणजे भीती वाटायची की वेळ येणार का नाही, पण मी धन्यवाद प्रभूला मी प्रार्थना केली आणि लिहायला बसला. मला सगळं इझी आलं आणि मी अशीच रोज सगळ्या एक्झाम्सला प्रार्थना करत बसला आणि मी सगळे पेपर असेच चांगले गेले. खरंच प्रभू खूप महान आहे. मी प्रभूला धन्यवाद देतो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं हम ग्रंथ के लिए। उसने प्रार्थना किया और सब पेपर इजी आए। हालेलुया। हमें भी रोज प्रार्थना करनी है कि हर दिन का हमारी परीक्षा, हमारे एग्जाम्स जो है वो क्या होने चाहिए, इजी होने चाहिए, है ना। हमारा हर दिन जो परीक्षा है वो ऐसे ही यूं ही प्रभु हमें उसमें से पार कराता जाए और हमें लेकर जाए। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं ग्रंथ के लिए। सच में प्रभु बहुत अच्छा है, अपने बच्चों की प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है। आइए और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को धन्यवाद दे। ना जेव्हा दवाखान्यामध्ये मी पडले तर मला डॉक्टर बोलला होता तू चालणार नाही। मी एवढी प्रार्थना केली तर प्रभूने मला चालायला लावलं। माझी सून दवाखान्यामध्ये होती, तिला कोण दवाखान्यामध्ये घेत नव्हतं। मग ठाण्याच्या दवाखान्यामध्ये तिला घेतलं। नंतर ती डिलिव्हरी झाली तर मुलगा 15 दिवस दवाखान्यामध्ये होता। 15 दिवस दवाखान्यामध्ये होता, तो त्याचा आवाज श्वास निघत नव्हता 15 दिवस। मी रोज उपवास केले, प्रार्थना केली, प्रभूला धन्यवाद करते। माझा नातू चांगला झाला, आता माझा नातू फिरतो, माझी सून बी चांगली आहे, माझं सर्वच चांगलं आहे। मला पायासाठी प्रार्थना करा बस। धन्यवाद प्रभूला। कितने सुहावने हैं वो पांव जो प्रभु का सुसमाचार को फैलाते। हालेलुया। आपको भी वही काम करना है तो जरूर आप ठीक हो जाएंगे और आपके भी पांव सुहावने हो जाएंगे। तो आपको आज दरवाजा खोल के दिया है सिस्टर ने और ब्रदर ने, वो बहुत बड़ा गलती किया है। चल के आने का प्रभु के मंदिर में, तो आपके पैर का दर्द निकल जाएगा, है ना। तो प्रभु ने आज खुला रखा है, उसका फायदा उठाना चाहिए। जब बंद करेगा तब बोलने का नहीं कि ऐसा क्या हो गया कि हम मिल भी नहीं पाते। प्रभु बहुत अच्छा है, इनके बेटे का डिलीवरी अच्छा हुआ, इनका नातू अच्छा है, प्रभु सब अच्छा करता है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं हमारी बहन के लिए। प्रभु जरूर उनके पांव को, प्रभु ने कीमत चुकाई है हमारी बहन के पैरों के लिए। आज पूरी तरह से उसमें चंगाई को कहते हैं। उनके बेटी के लिए, नातू के लिए भी धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने उन्हें नया जीवन दिया, अद्भुत रीति से चलाया। धन्यवाद प्रभु का। आइए और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को धन्यवाद दे। अमूल्यासाठी आपण प्रार्थना केली ना, तिला टायफॉइड झालेला, ताप येत होता आणि तिची पण परीक्षा होती, पण तिच्यासाठी पण आम्ही प्रार्थना केली, तुम्ही पण प्रार्थना केली। मग ती कल्याणला ना 5 दिवस जात होती कंटिन्यू इकडनं माटुंगा तो कल्याण पेपर देण्यासाठी। ताप वगैरे काहीच आला नाही आणि सगळे पेपर व्यवस्थित दिले तिने, छान गेले तिचे पेपर सगळे, म्हणून प्रभू येशूला धन्यवाद देतो। प्रभु का स्तुति हो। अमूल्या को परमेश्वर ने अमूल्य रीति से रखा और अमूल्य तरीके से संभाला। हम धन्यवाद करते परमेश्वर का। सच में वो हमें कवर करके रखता है, हर एक बाहर की चीजों से वो हमें बचाता है, और अगर हम परीक्षा में गिर भी गए वो हमें वहां से निकालता है। प्रभु बहुत अच्छा है। अमूल्या के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने चंगाई दी और उसके एग्जाम्स को लिखने में मदद किया। आइए और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को धन्यवाद दे। तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो। प्रभु किती चांगला आहे की आज प्रभूने आम्हाला सांभाळलं, त्याबद्दल प्रभूला धन्यवाद देतो। आणि शुक्रवारची भक्ती प्रभूने उत्तम आम्हाला चालवलं, उत्तम देववचन आम्हाला मिळालं, त्याबद्दल मी प्रभूला धन्यवाद देतो। आणि शुक्रवारची भक्ती झाल्यानंतर आम्ही घरी गेलो आणि काल मला एवढा त्रास व्हायला लागला होता, मला चालता येत नव्हतं, उठता येत नव्हतं, बसता येत नव्हतं, एकदम चालणंच होत नव्हतं। पण प्रभूने म्हणला तर उद्या प्रार्थनेला जायचं, कसं काय जायचं, कसं काय करायचं,
प्रभू तू तुम्हाला घेऊन जाणार आहेस आणि खरोखर प्रभूने आज मला चालायला सामर्थ्य दिलं त्यावेळी प्रभूला धन्यवाद देतो. मी परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देते. परमेश्वराने माझ्या जीवनात खूप कार्य केले. गुरुवारच्या दिवशी ना मी कामावर असताना अचानकपणे मला अचानकपणे माझं इतकं डोकं तापलं ना, तर मला काही सुचत नव्हतं. हात-पाय एकदम हे झालेले, थंड झालेले आणि मला कसं तरी व्हायलेलं कामावर. तर मला ना चक्करसारखं होत होतं. मी खाली गेली आणि मी अशी प्रार्थना वगैरे केली, तेव्हा पण काही झालं नाही. मग नंतरनी मग तिथं थोडा मी आराम केला आणि रस्त्याने चालताना पण मला अंधार यायला लागला. मग तेवढ्यात मी अंकलला फोन केला, की मला त्रास होते आणि मला चालायला पण जमत नाही. तर अंकल बोलले, की "डोंट वरी बेटा, मी प्रेयर करेल." मग अंकलनी माझ्यासाठी प्रेयर केली आणि तशीच मग मी दवाखान्यात गेली. मला ग्लुकोज वगैरे लावलं आणि अंकलनी माझ्यासाठी प्रेयर चालू ठेवलेली. तर मी परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देते, की परमेश्वराने माझ्या जीवनात इतकं कार्य केलं, मला आरोग्य दिलं. त्याबद्दल मी परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देते, की मी सही सलामत घरी पण पोहोचली. तसेच माझ्या बाळाला पण आरोग्य दिलं आणि काल पण मला अचानक ताप आलेला, पण मी प्रार्थना केली. परमेश्वराचं वचन आहे, की ज्या वेळेस तू मला हाक मार, मी त्या वेळेस तुला उत्तर देईन. मग खरोखरच परमेश्वरानं माझ्या जीवनात इतकं कार्य केलं. मी ज्या वेळेस परमेश्वराला हाक मारली, त्यावेळेस मला परमेश्वराने उत्तर दिलं. परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देते. आपण काही क्षणामध्ये विसरून जातो, पण परमेश्वर आपल्याला जवळ करतो आणि परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देते. खरोखर तो किती चांगला आहे, त्याचा अनुभव घेऊन पण मी परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देते. Father, we come to you in your Son Jesus' name, Lord. We give you all the glory, honor, and praise. We thank you, Lord, that you're a living God, Lord, and that you have risen, Lord. We thank you as you walked out of that grave, Lord. Your people walked out with you, Lord. We thank you, Lord. We thank you for this marvelous day, Lord. We thank you, Lord, that you are the resurrection and the life, Lord. We thank you for your faithfulness, your goodness to your children, Lord. We thank you for all the testimonies, Lord, that prove that you are a living and true God that answers the cries of your children, Lord. We thank you for many more testimonies which are on the way, because all your promises are yes and amen in you, Lord. Today, as a church, we bow before you, Lord. We declare your lordship over our lives, Lord, over our families, over our children, over our jobs. And we believe, Lord, that we serve a living and faithful God. We thank you, Father, in Jesus' mighty name, Lord. Amen. Greetings to you all in Jesus' name. आप सबों का यीशु मसीह के नाम में अभिवंदन। And we thank God for each one of you. और मैं धन्यवाद करता हूँ आप में से हर एक के लिए। God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है He cares for you. और वो आपको संभालता है। And truly, God is good. सच में परमेश्वर अच्छा है And you all are good. और आप सभी अच्छे हैं। Amen. He has given us this day और that उसने आज का दिन हमें दिया है we may rejoice and be glad in it. कि हम उसमें आनंदित हो और उसे मनाएं And we may glorify our God in heaven. और हमारे स्वर्ग में पिता की महिमा करें। Amen. आमीन। He is mindful of us. उसका मन हमसे बड़ा है। From Hebrew 10:25. इब्रानी 10:25 से Let us not neglect meeting together. और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। Amen. आमीन। So the time is coming, क्योंकि समय आ रहा है and already we have experienced it, और हमने पहले से ही उसका अनुभव लिया है that we can't meet together. कि हम मिल नहीं सकते, We can't come in fellowship. हम जो है इकट्ठा नहीं हो Enemy सकते। doesn't want us to come together. और जो दुश्मन है वो नहीं चाहता कि हम मिले, Satan wants us to sidetrack. और जो शैतान है वो हमें साइड ट्रैक करना This चाहता word है। is not written yesterday. ये वचन जो है कल नहीं लिखा गया है, It's written long back. ये वचन बहुत पहले लिखा गया है That we may understand the depth and the truth of the word of God. कि हम परमेश्वर के वचन की गहराई को और उसके सच्चाई को समझ सके। Amen. आमीन। Let us not neglect meeting together. तो आइए हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। Please open your mind, अपने मन को खोलिए, heart, हृदय को खोलिए and be present here in spirit and truth. And आत्मा not just physically. आत्मा और सच्चाई में यहाँ पे रहिए, Open केवल your- शारीरिक रूप से यहाँ पर मत रहिए। Open your hearts to God, अपने हृदयों को प्रभु की ओर लगाइए, for He is going to pour His Spirit on you.
क्योंकि वो अपने आत्मा को आपके ऊपर उंडेलेगा He's going to pour His Spirit on every flesh which is ready. और जो भी शरीर तैयार है उसके ऊपर अपने आत्मा को उंडेलेगा। He's going to pour His Spirit on all flesh, वो अपने आत्मा को हर एक के ऊपर उंडेलेगा, not on anyone else who is Yes. not available. किसी और के ऊपर नहीं जो उपलब्ध नहीं है। Prepare your minds, अपने मन को बनाइए, hearts. हृदय को बनाइए। Let us gather together. आइए हम इकट्ठा हो। Why? क्यों? Because we are the body of Lord Jesus Christ. क्योंकि हम जो है प्रभु यीशु क्रिस्त का देह है। We need one another. हमें एक दूसरे की जरूरत है। We need to prepare our hearts and show ourselves that we are all the members of the body of Lord Jesus Christ. हमारे मन को बनाना है और ये समझना है कि हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह का देह है। We all are members हम सब उसके अंग हैं, of one body, एक देह के, that is Lord Jesus वो Christ. है प्रभु यीशु क्रिस्त। Amen. आमीन। Please come together. आप इकट्ठा होइए, Don't neglect it. इसे न छोड़े। It's a command. ये आज्ञा है, Command from the Lord. ये परमेश्वर की ओर से आज्ञा है। And prepare our hearts. और अपने हृदय को Our बनाए, minds. हमारे मन को, Be true to Him. और उसके साथ हम सच्चे रहे। Amen. आमीन। Be true to Him. उसके साथ सच्चे रहे। I will give you guarantee. मैं आपको गारंटी देता He हूँ will be surely true to you. और वो सच में आपके साथ सच्चा रहेगा। If you want to offer something, अगर आप कुछ समर्पित करना चाहते हैं, If you अर्पण करना चाहते हैं, want to give something, अगर आप कुछ देना if चाहते you want to हैं, invest something in the kingdom, अगर आप कुछ राज्य में देना चाहते हैं, invest your time. आपके समय को दीजिए। Second thing, दूसरी बात, invest your body. आपके शरीर को दीजिए। Amen. आमीन। Invest your mind. अपने मन को दीजिए, Invest your heart. अपने हृदय को दीजिए, Invest your strength. आपके सामर्थ को दीजिए। You will reap the great harvest. आप बहुत बड़े फसल को काटेंगे। Much, much more beyond your understanding. आपके सोच विचार के परे। Let us not neglect meeting together, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, as some have made a habit. जैसे कि कितनों की रीति है। हाँ. What is their habit? और उनकी हैबिट क्या है? To neglect रीति क्या meeting है? together. कि वो छोड़ देते हैं मिलना। है ना? Praise God. प्रभु की स्तुति हो। This online now it is working. ऑनलाइन अब काम कर रहा है, Please join. It's good you're joining. तो बहुत अच्छा है आप ज्वाइन कर रहे हैं। You're most welcome here. आपका स्वागत है सब। Thank God for each one of you. आप में से हर एक के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते You're हैं। really precious. आप सच में कीमती हैं। And God will pour His Spirit on you in these days. और इन दिनों में परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेलेगा। I tell you, मैं आपसे कहता हूँ, prepare your hearts. अपने हृदयों को बनाओ, Prepare your mind. अपने मन को बनाओ। You will open your mouth आप अपने मुख को खोलेंगे and the word of wisdom will flow through you. ज्ञान आप के में से वचन. ज्ञान के वचन बहेंगे। You all open up your mouth आपको अपने मुख को खोलना है and you will experience the oracles of God flowing through you. और आप अनुभव लेंगे कि आपके मुख से परमेश्वर की वाणी निकल रही है। Oh, you will experience the power of God. आप परमेश्वर के सामर्थ का अनुभव You will करेंगे। lay your hands on sick आप बीमार के ऊपर अपने हाथ रखेंगे and they shall be healed. और वो चंगे हो It's जाएंगे। not just one man. ये केवल एक व्यक्ति नहीं है। That show is closed now. वो शो जो है बंद हो गया A है। new show, अभी नया शो a है, new power, नया a सामर्थ, new anointing. नया Each अभिषेक। one of you आप में से हर एक are member of the body of Lord Jesus Christ. क्रिस्त यीशु मसीह के देह के एक एक अंग है। The same anointing will flow. वही अभिषेक बहेगा, Same anointing. वही अभिषेक, The same anointing वही अभिषेक will flow through you. आप में से बहेगा।
Just you believe. केवल आप विश्वास कीजिए, Just you wait on him. उस पर रुके In रहिए due time, और सही समय में, in right time, नियुक्त किए हुए समय में you will experience it. आप अनुभव लेंगे The anointing अभिषेक which को, breaks every yoke from your life. जो आपके जीवन में से हर एक जुए को तोड़ डालता है। Generational curse, पीढ़ियों से आने वाले श्राप, generational sin, पीढ़ियों से आने वाले पाप, generational diseases. पीढ़ियों से आने वाली You may बीमारियां, think that how it could be. और आप सोचते होंगे कि ऐसा कैसा। Just believe it. केवल विश्वास कीजिए। Faith is a substance of the विश्वास things which you have not seen. It is the evidence. विश्वास वो तत्व है उन चीजों का जो आपने देखा नहीं है, उसका सबूत है। Amen. Amen. If you have faith, अगर आपको विश्वास है you will experience it. तो आप उसका अनुभव लेंगे। Jesus said, यीशु ने कहा, when the Son of Man will come, जब परमेश्वर का पुत्र आएगा, will he find faith? क्या वो विश्वास को पाएगा? That means इसका मतलब he है want you to stand in faith. वो चाहता है कि आप विश्वास में खड़े रहे, Do not sell your faith. अपने विश्वास को बेच न दे, Don't sell it उसे बेचिए मत, at any cost. किसी भी कीमत पे बेचिए मत, Trust Jesus. किसी भी कीमत पे परमेश्वर यीशु पर भरोसा करें, Trust God. प्रभु पे भरोसा करें, Trust God. परमेश्वर पे भरोसा But करें। let us encourage one another. पर एक दूसरे को समझाते रहे। What we need to do? हमें क्या करना है? All of you. आप we- सभी We need to encourage one another. एक दूसरे को समझाना है। Whenever your mother tells you something, say, I know, shut your mouth now. You're grown up, man. हम बड़े हो गए अभी। I know. मैं जानता हूँ। Your mother will raise voice. तो आपकी मम्मी और आवाज बढ़ाएगी And you should raise your voice. और फिर आप I know. और आप कहेंगे कि मुझे मालूम है, मैं जानती हूँ, I know. मैं जानता हूँ। Amen. No. नहीं, We all know. हम सब जानते हैं, But we need one another. पर हमें एक दूसरे की जरूरत है। We need you. हमें आपकी जरूरत है। We need each one of you. हमें से अरे एक दूसरे की जरूरत है। Your prayers आपकी प्रार्थना are powerful. और वो सामर्थशाली है। Please continue to pray. तो लगातार आप प्रार्थना करते रहे, We all will become perfect. हम सब परिपूर्ण हो But जाएंगे। let us encourage one another. पर आइए हम एक दूसरे को प्रोत्साहन दें। What we should do? हमें क्या करना है? Encourage one another. एक दूसरे को प्रोत्साहन दे। Jesus. घबरा मत, यीशु मसीह आने वाला She है। doesn't know what Jesus will come. क्या उसे मालूम नहीं कि वो प्रभु यीशु मसीह आने She वाला है? knows. वो जानती है। But she needs you that you may tell her. उससे आपकी जरूरत है कि आप उसे बताएं। When you say, जब आप कहते हैं it get confirms. तो वो कंफर्म पक्का हो जाता है। It's not chanting. ये सिर्फ Chanting मालूम है ना? क्या करते हैं उसके मंत्र English में? पढ़ना नहीं है, It's a confirmation. पर वो पक्का करना You है। speak, you speak, you speak, you आप speak. बोलिए बोलिए, You speak, you speak. आप बोलते रहिए। You know when you speak, जब आप बोलते रहेंगे और बोलते रहेंगे, faith comes. विश्वास आता है। You know? 10:17 of Romans says, faith comes by listening and listening to the word of Christ. रोमियो का पत्र 10वां अध्याय 17 वचन कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। Amen. आमीन। When you hear, your faith will be boosted up. जब आप सुनेंगे तो आपका जो विश्वास है वो उठता रहेगा। I don't know you have experienced or not, आप, मुझे नहीं मालूम आपको ये अनुभव है या नहीं, but I experienced in my life. पर मेरे जीवन में मैंने अनुभव लिया है। I believe many of you might have experienced. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप में से बहुतों ने अनुभव लिया होगा। And somebody comes
कोई आता है, Kirru, pirru, kirru, pirru, kirru, pirru, tirru, pirru, kirru. It's just chewing your brain, chewing your brain, chewing your brain, chewing your... you will get out and you will say, shut your mouth now. जब कोई आता है और आपके दिमाग को ऐसा खाता है Chirru, pirru, chirru, pirru. तो आप कहते अभी हैं शांत कर, अभी शांत कर, अभी शांत कर. बोला ना शांत हो जा. Why you know? Saying. आप जानते हैं क्यों? क्योंकि बोलते रहता है, बोलते रहता है, बोलते रहता है. You know, devil is doing nowadays the same. आप जानते हैं जो दुष्ट है वो भी वैसा ही आजकल कर रहा है. Long back, पर बहुत पहले my daughter was watching cartoons. मेरी बेटी जो है कार्टून देख रही थी, I was watching cartoon मैं भी देख रहा था, because my brother gave that CD क्योंकि मेरे भाई ने वो सीडी लाया था and the cartoon was there. और वो कार्टून चल रहा था. There is a cat वहाँ पे एक बिल्ली थी and a cat was sitting like this on a sofa set बिल्ला जो था ऐसा बैठा हुआ and a था billy came here और बिल्ली बाजू में आई and a cat saw और बिल्ले ने देखा that mouse is taking a bunch of rose. कि जो चूहा फूलों के बंच को लेकर जा रहा है. We were watching. हम देख रहे My थे, daughter was watching. मेरी बेटी My parents were watching. और मेरे माता पिता भी देख रहे थे. And that the Tom took that one of the flower roses चूहा जो है वो फूलों को लेके जा रहा था and a Tom picked one rose और उस बिल्ले ने एक फूल को उठाया and from here और यहाँ से he gave to that white cat. और वो बिल्ली को दिया, सफेद बिल्ली को. I saw. और मैंने देखा, I was feeling good. अच्छा लग रहा था. I was thinking, मैं सोच रहा था why I am feeling good? मुझे क्यों अच्छा लग रहा है. I saw, turned and I saw my father seeing this. और मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरा पिताजी भी My देख mother रहा is है. watching this. मेरी माँ भी देख रही My है. daughter is watching this. मेरी बेटी भी देख रही है. See what my daughter is exposed to. और मैं देख रहा था मैं बोलता हूँ देखो मेरा बेटी किस चीज के लिए खुली हो गई. Can you see it? क्या आप समझ सकते Have you ever thought about it? क्या कभी आपने ये समझा है? You might have thought. हो सकता है आपने सोचा हो. I don't know about you. मुझे आपके बारे में मालूम नहीं. But I've seen many parents. मैंने बहुत सारे माता पिता They को देखा watch है. every nonsense with their children. वो अपने बच्चों के साथ बहुत ही हर गंदगी को देखते हैं. Every nonsense. हर गंदगी को देखते हैं. I saw. मैंने देखा This is something wrong. ये कुछ गलत है. Why I am feeling good? मुझे क्यों अच्छा लग रहा है. Why my parents are enjoying? मेरे माता पिता क्यों आनंद उठा रहे And हैं. even my daughter is enjoying. और मेरी बेटी को भी अच्छा लग रहा है. I exposed her to a wrong thing. मैंने उसे गलत चीज के सामने रखा. I took that CD. मैंने वो सीडी को लिया. I went and I removed it. मैं गया और सीडी को निकाला. I broke it. मैंने I उसे broke it. तोड़ दिया. My brother got angry. तेरा मुंह फोड़ देगा. और मेरा भाई जो है बहुत ही गुस्से में आ गया, तेरा मुंह फोड़ देगा. I said, किसका भी फोड़. मैंने कहा किसका भी फोड़. मेरा काम हो गया. मेरा काम हो गया. आज के बाद आज के बाद never any cartoon CD should come to my house. कोई भी कार्टून का सीडी मेरे घर में I नहीं tell you आएगा. the truth. मैं आपको सच कहता From हूँ, that time उस समय से till now, अब तक never any cartoon came. कोई कार्टून मेरे घर में नहीं आया. From 1992, 1992 से I don't have television. मेरे घर में टीवी नहीं I have है. television, मेरे घर में टीवी है. no cable connection, कोई केबल कनेक्शन नहीं no था. DD antenna. कोई भी एंटीना नहीं था. That means TV is inoperative. इसका मतलब है टीवी काम नहीं करता था. Take care what you watch. आप संभालिए कि आप क्या देख रहे हैं. When you watch, जब आप देखते when you हैं, watch, जब आप देखते when you हैं, watch, जब आप देखते you are हैं, pushing your children, yourself into the same pattern. तब आप अपने आप को उसी पैटर्न में तरीके में लगाते हैं. You are pushing your children in same pattern. आपके बच्चों को भी उसी तरीके में You are चलाते हैं. eating nonsense, you are giving nonsense to your children. गलत खाते हैं और गलत बच्चों को खिलाते Church हैं. now is a high time. हे कलिसिया, अब जो है बहुत ही गंभीरता का समय We है. need to be alert.
हमें जागृत रहना what है। we eat. हम क्या खा रहे I'm हैं। not speaking about food. मैं खाने के बारे में नहीं कहता, भोजन के बारे में नहीं कह रहा. भोजन के I'm बारे में नहीं, speaking about what you hear. मैं उस दादा ते बंद चीज करो. के बारे में कह रहा हूँ What you eat, जो आप खाते हैं, what you see, आप क्या देखते हैं, what you hear, आप क्या सुनते what you हैं, experience, आप क्या अनुभव करते how you हैं, behave. आप कैसे बर्ताव करते हैं। Telling very serious things. Huh? मैं बहुत ही गंभीर बातों को कह रहा हूँ। There came a time ऐसा समय आया, I gave an internet connection to my daughter. मैंने मेरे बेटी को इंटरनेट कनेक्शन दिया। She was very small. वो बहुत ही छोटी थी। I told her, मैंने उससे कहा, बेटा, बेटा you should not watch any nonsense. तू कुछ भी गंदा नहीं देखना। I don't watch you, I don't watch you. मैं तुम्हें नहीं देख सकता, but Jesus. पर यीशु मसीह तुम्हें देखता है। First, train your children. अब पहले अपने बच्चों को सिखाइए, Yes. Train yourself. अपने आप को सिखाइए। You ask my daughter, मेरे बेटी से पूछिए, पापा तू कैसा आइसक्रीम खाता? I need to train myself. मुझे पहले अपने आप को सिखाना है। I need to stop something. मुझे कुछ रोकना है अपने आप को। I need to be an example. मुझे उदाहरण बनना I है। need to encourage my daughter. मेरे बेटी को प्रोत्साहन I देना need to है। encourage my brother. मेरे भाई को प्रोत्साहन I need देना to है। encourage my sister. मेरी बहन को प्रोत्साहन देना है। We need one another. हमें एक दूसरे की जरूरत है। You need to pray for me. आपको मेरे लिए प्रार्थना करनी You need to pray पड़ेगी। for us. हमारी And प्रार्थना really, कीजिए। I request you all, मैं आप सबों से विनती करता plead हूँ, you, आपको विनती करता your हूँ, prayers work. आपकी प्रार्थनाएं काम करती है। We share word, हम वचन को बांटते हैं, we do anything. हम कुछ भी करें, You have a great partnership. आपका उसमें बहुत बड़ा We भाग है। all pray for one another. हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। We all pray for one another. हम सबको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। God is good. परमेश्वर अच्छा है। But let us encourage one another पर हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन देना है। as all the more as you see the day approaching. ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। Amen. You need to see. आपको देखना है। Today, a student came. आज हमारे बच्चे आए Before she came, और वो आने से she पहले called me. उसने मुझे कॉल Hi, किया। sir. हाय सर। Hi, sir. I thought something happened to her. मैंने सोचा कुछ तो उसको हुआ है। बोल बेटा, बोल बेटा, क्या हो गया? She said, sir, आप घर में हो? उसने पूछा, सर आप घर पे हैं? I said, I'm not available. मैंने कहा मैं हूँ पर मैं उपलब्ध नहीं हूँ। Not available today. आज उपलब्ध नहीं If you want to हूँ। come, अगर तुम लोग आना चाहते हो, come, आओ attend church and go your own house. आओ और चर्च को अटेंड करो और फिर घर I'm जाओ। very busy. आज मैं बहुत ही Okay, busy बेटा, हूँ। bye. मैंने कहा ठीक है बेटा बाय। After half an hour, आधे घंटे के बाद she dropped in. वो लोग घर पे आए। I understood something is wrong. मैंने सोचा कुछ तो गलत है। I didn't went out. मैं बाहर गया नहीं। She went. वो गई बोला ना नहीं आने का, आज बिजी है. तो वो गई और कहा बेटा बोला ना आज बिजी है, आप नहीं आना चाहिए था। Then she made Oracle to give something. तो उसने ओरेकल को बोला कुछ उन्हें देने के लिए। After that, उसके बाद the same girl. वही लड़की, टीचर, मेरा शादी है. Wow! She was unable to keep quiet. और वो लड़की उसके बाद बोली कि टीचर मेरा शादी है। वो लड़की अपने आप को चुप रख न सकी। She was unable to hold her peace. वो अपने शांति को थाम न सकी। वो जरूर आएगा, वो आने वाला है, क्या तुम तैयार हो? Hallelujah. Hallelujah. He is going to come. वो आने वाला He है। will surely वो come. जरूर आएगा। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Or you're thinking just it's a religious thing.
या आप सोच रहे हैं कि ये धार्मिक चीज है, Just preaching every Sunday. Just preaching in every Sunday. धर्मी हर रविवार को जैसे प्रचार करता है? No. नहीं नहीं, We are waiting for Lord's coming. हम प्रभु के आगमन के लिए रुके हैं। Amen. आमीन। You are seeing that. If you see that day, अगर आप उस दिन को देख रहे you can't हैं, hold your peace. आप अपने शांति को थाम नहीं सकते। Jeremiah said, I said, I'm not going to speak now. इर्मिया ने कहा कि अब मैं बोलूंगा नहीं, But it was like a fire inside. पर उसके अंदर आग भड़क रही थी। परंतु वो उसके अंदर आग सी थी. Came out. और वो बाहर निकल आई। Amen. आमीन। Is it inside you like that? क्या आपके अंदर ऐसा है? Hello. I'm speaking about rapture. मैं रैप्चर उठा लिए जाने के बारे में कह रहा हूँ। I'm not speaking about Jesus' resurrection. मैं यीशु के पुनरुत्थान के बारे में It's नहीं कह really रहा। joy he resurrected from the dead. ये सच में आनंद की बात है कि वो मृतकों में से जी But उठा। I am speaking about our resurrection. पर हमारे पुनरुत्थान के बारे Those में who कह रहा dead, हूँ। our brethren who are dead in Christ, हमारे भाई जो क्रिस्त में मर गए, they will resurrect to life. वो पुनरुत्थान हुए होंगे And we will be raptured. और हमारा उठा लिया जाना होगा। Somebody say amen. कोई कहे आमीन। I'm telling about that. मैं उसके बारे में कह रहा हूँ आपसे। कुछ हो रहा है? कुछ क्या कुछ नहीं हो रहा है? सब कुछ हो रहा है. Hello. As that day is approaching. जैसे वो दिन पहुंच रहा है, नजदीक आ रहा है. Come on, gather more. और इकट्ठा हो जाओ। Come on, encourage someone. एक दूसरे को प्रोत्साहन But दो। how you know the day is approaching? पर आपको कैसे मालूम कि वो दिन नजदीक आ रहा है? If you have a lens to see, अगर आपके पास लेंस है देखने के if लिए, you have eyes to see, अगर आपके पास आंखें हैं देखने if के you have लिए, ears to hear, अगर कान है सुनने के लिए, then you will say, yes, Jesus is coming. तब आप कहेंगे हाँ यीशु मसीह आ Because रहा you are है। hearing the sound. क्योंकि आप जो है आवाज को सुन रहे You are हैं, hearing his voice. उसके आवाज को सुन रहे You are हैं। experiencing the presence of Jesus. यीशु मसीह की उपस्थिति का अनुभव ले रहे हैं। You know very well. आप अच्छे से जानते He is हैं coming soon. वो जल्द आ रहा He is है, approaching. वो पहुंच रहा है। Everything is a proof. हर चीज जो है सबूत है। You will not sit quiet. आप यूं ही चुप नहीं रहेंगे, You will encourage one another. आप एक दूसरे को प्रोत्साहन देंगे। For that only Jesus is calling. उसके लिए ही प्रभु ने आपको बुलाया है। And the more as you see the day approaching, और जैसे आप देख रहे हैं कि वो दिन नजदीक है, और ज्यादा करो. Hallelujah. हालेलुया। And devil will not bear it. और जो दुष्ट है वो उसे सह नहीं पाएगा। Yes, he will try to stop you and hinder you. वो आपको रोकने की रुकावट डालने की कोशिश There is करेगा। power when we come together. जब हम इकट्ठा होते हैं तो सामर्थ है उसमें। Amen. आमीन। God bless. परमेश्वर आपको आशीष दे। God bless you all. परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। Please, I pray, ask God discretion. मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको परखना सिखाए। Pray to Him. उससे प्रार्थना कीजिए, Ask God परमेश्वर से मांगिए to see the truth. कि सच्चाई को आप देख सकें। Ask God. परमेश्वर से मांगिए। I tell you, मैं आपसे कहता हूँ, I was walking in the wrong path, मैं गलत मार्ग में चल रहा था, but still Jesus loves me. पर फिर भी यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है। I may be in the wrong path, हो सकता है मैं गलत मार्ग में but if हूँ, your mind is on Christ, पर अगर आपका मन क्रिस्त पे if your लगा heart is है, on Christ, अगर आपका हृदय क्रिस्त पर लगा है, your brother and sister will come to encourage you.
तो आपका भाई या बहन आपके पास आएंगे और आपको प्रोत्साहन देंगे। Praise God. प्रभु की To स्तुति open up हो, your eyes. आपकी आंखों को खोलने To के show लिए, you. आपको दिखाने के लिए, Because he says, I stand at the door and knock. क्योंकि वो कहता है कि मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ और खटखटा रहा हूँ। Can you hear? क्या तुम सुन सकते हो? Praise God. प्रभु की स्तुति हो। God loves us. परमेश्वर हमसे प्रेम करता Each है, one of us. हम में से हर एक से Very precious to him. बहुत ही हम कीमती है उसके We लिए। all know हम सब जानते हैं that 7 years tribulation is going to start very soon. कि 7 साल का सताव जो है बहुत जल्दी शुरू होगा। हम सब जानते हैं That 7 years tribulation is going to start very soon. कि 7 साल का सताव जो है बहुत जल्दी शुरू होगा। The message in the revelation is coming true. और जो प्रकटीकरण का संदेशा है वो सच हो रहा है। The message is so true. वो जो संदेशा है इतना सच्चा है। The 7 years tribulation is going to start very soon. 7 साल का सताव का समय बहुत जल्दी शुरू हो रहा है। We all know. हम सब जानते हैं। Maybe in January 2023. हो सकता है जनवरी 2023 में। Can you hear it? क्या आप सुन रहे हैं? Can you experience the waves? क्या आप उसके लहरों का अनुभव ले रहे हैं? How much more we need to be ready? हमें कितना और तैयार रहना है। It may start any time in 2023. वो 2023 में कभी भी शुरू होगा। And we all know that current situation in the world is deception. और हम जानते हैं कि अभी जो दुनिया में परिस्थिति है वो फसावट की है। Everywhere deception. हर जगह जो है फसावट चालू है। False teaching गलत शिक्षण on our return of our Lord Jesus Christ. हमारे क्रिस्त यीशु मसीह के आगमन में। False teaching about it. गलत शिक्षण उसके False बारे teaching में। about our rapture. और उठा लिए जाने के लिए गलत शिक्षा। Satan is really working hard. शैतान जो है सच में कड़ी मेहनत कर But the रहा है। church is sleeping. पर कलीसिया सो रही है। We need to get up. हमें उठना है। We need to be alert. हमें जागरूक We need to रहना be है। ready. हमें तैयार हो जाना है। It's about our rapture. वो हमारे उठा लिए जाने के It's बारे about the में। resurrection of the dead first. और जो पहले मृतक है वो जी उठेंगे उनके बारे में है। Are we ready? क्या हम तैयार हैं? Satan is working really hard शैतान जो है सच में काम कर रहा to है cut into your skin, आपके चमड़ी को काटने के लिए to engrave in the skin. और आपके चमड़ी में काट कर डालने के लिए। That is in Greek called charisma, और ग्रीक में उसे करिग्मा कहते the हैं। mark of Satan. शैतान का चिन्ह। For the mark of Satan, शैतान के चिन्ह के लिए charisma, करिग्मा। cut into your skin. आपके चमड़ी में काटा जाना। A technological ID तकनीकी पहचान under which you are forced to buy and sell the things. जिसके अंदर आपको जबरदस्ती किया जाएगा कि आप उसी तरीके से बेचे और खरीदे। Without it, उसके बिना you can't. आप कर नहीं। No charisma, करिग्मा नहीं। no hospitalization. हॉस्पिटल में आप भर्ती नहीं हो सकते, प्रवेश नहीं कर सकते। But it's about, it will come now. No charisma. पर अब ऐसा आएगा, करिग्मा नहीं। Charisma is Greek word. करिग्मा ग्रीक वर्ड है। Then no entry. तो आप प्रवेश नहीं You कर can't सकते। buy. आप खरीद नहीं You सकते। can't sell. बेच नहीं सकते। You can't travel. आप सफर नहीं कर If सकते। you don't have that ID, अगर आपके पास वो पहचान नहीं you है can't. तो आप नहीं कर It's सकते। really working. वो सच में We काम कर रहा need है। to go home and read Revelation 13 and ask God. हमें घर जाना है और सच में पढ़ना है प्रकाशित वाक्य 13 Ask अध्याय। God to give understanding. परमेश्वर से मांगे कि वो आपको समझ दे। And this Revelation 13 is asking for the call of wisdom. और ये जो प्रकटीकरण का 13 अध्याय है वो बुलावट के बारे में है। फेक चर्चेस क्या कर रहे हैं? वो टीचिंग दे रहे हैं और वो कोलेड जो है वो जो आपको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, खाओ पियो खाओ पियो खाओ पियो खाओ पियो, भर जाओ. And with that there is the place where Satan takes us.
और वहां पर जो है वो जगह है जहां पर शैतान आपको ले लेता है। Rekha called many ministries. रेखा ने बहुत सारे मिनिस्ट्रीज को सिस्टर, पास्टर, ब्रदर, क्या मैं ले सकती है क्या वो? हाँ, टेक इट, गो अहेड, उन्होंने कहा हाँ आप ले सकते नो हैं, प्रॉब्लम. कोई बात नहीं। Then she used to come to me. तो वो मेरे पास आती थी। When they are saying, जब वो कह रहे हैं, big ministries are saying, बहुत बड़े बड़ी सेवकाई करने वाले how कह रहे can हैं, you tell don't take her? कैसा तू कहता है नहीं ले? Not I. मैं नहीं। If you open your eyes, अगर आप अपनी आंखों को you खोले, will see many people, they have not taken it. आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने नहीं लिया God है। kept his people. परमेश्वर ने अपने लोगों को रखा। You need to be alert. आपको जागरूक रहना है। You are on the way to his house and his world. आप उसके घर में और दुनिया के उसके रास्ते में। दुनिया के रास्ते में हैं, Or the new world order, या नया वर्ल्ड ऑर्डर, which is the 8th final empire going to come. और नई जो 8वां जो राज्य आने वाला है, नया साम्राज्य। साम्राज्य, वो है वो. The 7 years tribulation, 7 साल का सताव। you can go home and read Revelation 17. आप घर में जाइए और प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय पढ़िए। You must love the word of आप परमेश्वर के वचन से प्यार कीजिए। Go home, घर में जाइए, take Bible, बाइबल लीजिए read till Revelation 22. और प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय तक पढ़िए। Give yourself अपने आप को दे दीजिए for reading, पढ़ने के लिए, praying, प्रार्थना के लिए। asking God. परमेश्वर से मांगिए, God will speak with you. परमेश्वर आपसे बातें करेगा, For the end is very near. क्योंकि अंत बहुत नजदीक है। Study the word वचन पढ़िए and it will affect you. और वो आपको असर It करेगा, will help you out. वो आपको मदद करेगा। Please do not take charisma. और आप करिश्मा मत लीजिए। Please do not allow anything to enforce and engrave in your body. अपने शरीर में कुछ भी करिश्मा या कुछ ऐसी चीज जाने मत, Do not allow it. उसे इजाजत मत If दीजिए। you know someone has taken, अगर आप जानते हैं कि किसी ने लिया है, please inform them to repent. उन्हें बताइए कि वो पश्चाताप करे। God is good. परमेश्वर अच्छा है। Don't go and take and repent. जाकर लेकर और फिर बाद में पश्चाताप मत कीजिए। If you know someone has taken, अगर आपको मालूम है किसी ने ले लिया है, then repent. तो उनको बताइए कि पश्चाताप करिए। God is gracious. परमेश्वर जो है अनुग्रहशाली है, Don't take any further step for it. और आप जाकर और कोई कदम नहीं उठाइए। Ask God परमेश्वर से मांगे and God will clean us all. और परमेश्वर हम सबों को शुद्ध करेगा। Many of this poison और बहुत सारे लोग इस जहर से भरे गए and they are going to die. और वो मर जाएंगे। If you repent, अगर आप पश्चाताप करें, God is with you. परमेश्वर आपके साथ I'm है। telling you again, मैं फिर से आपसे कहता the हूँ, death is injected in the body. मृत्यु जो है शरीर में डाली गई है। What I know in part, जो मुझे थोड़ा सा मालूम है, I'm just telling मैं you. आपको बता रहा हूँ। Prepare your hearts, आपके हृदय को बनाइए, prepare your minds, मन को बनाइए and repent. और पश्चाताप कीजिए। Repent. पश्चाताप कीजिए। I pray, I say that they will not get a chance to repent, that people, and they will suddenly die. जिन लोगों को पश्चाताप करने का समय नहीं मिलेगा, वो अचानक मर जाएंगे। And they can't enter into kingdom of heaven. और वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। You know, Friday you heard आप जानते हैं, और शुक्रवार को आपने सुना the message. संदेश को, Till your last breath, आपके अंतिम श्वास तक He is there वो है, to help you, आपको मदद करने के to लिए, make you repent, आपको पश्चाताप कराने के and लिए, to give you paradise. और आपको स्वर्गलोक देने के लिए। But पर if you don't get chance, अगर आपको मौका नहीं मिला, if you don't get understanding, अगर आपको समझ नहीं मिली, it's very sad. ये बहुत ही बुरा है। The final government is Satan's government. जो
फाइनल आखिरी सरकार है वो शैतान की सरकार है। That almost all countries are changing into one world law. खास करके सभी जो पूरे जो देश है, सब देश एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट में आ रहे हैं। Praise God. प्रभु की We स्तुति need हो। to repent. हमें पश्चाताप करना We है, need to change our hearts. हमें हमारे हृदय को बदलना We है, need to prepare our hearts. हमारे हृदय को बनाना है। Hello, church. हेलो कलीसिया, If you believe in the resurrection of Jesus Christ, अगर आप यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर भरोसा करते हैं, that same Spirit वही आत्मा will work in us powerfully. हमारे अंदर सामर्थशाली रूप से कार्य So करेगी, powerfully इतना सामर्थशाली रूप से that He will not leave you alone. कि वो आपको यूं ही अकेला नहीं He will छोड़ेगा, resurrect you from the dead. वो आपको मृतकों में से You जिलाएगा। know why Jesus went through agony and pain? आपको मालूम है यीशु मसीह उस पीड़ा में, उस तकलीफ से क्यों गुजरा? He himself bore our sins क्योंकि उसने खुद होकर हमारे पापों को उठा लिया, that we may be free from sin. कि हम पाप से मुक्ति पाए। He hung on a cross and he was cursed. और क्रूस पर उसे लटकाया गया और श्रापित किया The गया। one who knew not the sin, he became sin. वो जो पाप को जानता न था, वो खुद पाप बन गया। That same Jesus वही यीशु was resurrected from the dead. मृतकों में से जी उठा। The power of God raised him from the dead. परमेश्वर के सामर्थ्य ने उसे मृतकों में से जिलाया, Broke every chains. हर एक जंजीर को तोड़ Death was डाला unable to hold him. और मृत्यु उसे पकड़ नहीं पाई। Why? क्यों? He cried out in the midst of the 7 words, the 4th word, Eli, Eli, lama sabachthani. और 7 वचनों में का बीच का वचन में वो चिल्लाकर पुकारा, एली एली लामा शबक्तानी। Why God? Why you क्यों left me? परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? A powerful God, सामर्थशाली परमेश्वर, true judge. सच्चा न्यायी, There is no variation in him. उसमें कोई भी अलगाव नहीं। That God, वो परमेश्वर, with that God he pleaded. उस परमेश्वर से उसने प्रार्थना की। Why God? Why? क्यों परमेश्वर? My क्यों? God, my God. हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे Why you परमेश्वर, forsook me? क्यों तूने मुझे छोड़ दिया? He went in through everything हर पीड़ा से गुजरा, for your sake and my sake. आपके खातिर और मेरे खातिर, That he may get the judgment. कि उसे न्याय मिल सके। God is good. परमेश्वर अच्छा है। Bible says बाइबल कहता है God raised him from the dead. कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिला उठा। Bible says बाइबल कहता है death can't hold him. मृत्यु उसे थाम नहीं सकी। Amazing. अद्भुत। If he died for us, अगर वो हमारे लिए मारा गया, took all our sins, हमारे सारे पापों को ले लिया, let us being dead for sin, तो आइए हम पाप के लिए मर जाए। what it will cost? उसके लिए क्या कीमत देनी पड़ेगी? It may cost anything. उसके लिए कुछ भी कीमत क्यों न देनी पड़े। Let us be dead to sin. आइए हम पाप के लिए मर जाए Let there be no place for the sin in us. और पाप हमारे जीवन में कोई जगह को न ले सके। Let us live for righteousness' sake. आइए हम धार्मिकता के लिए जिए, Not for self now, अब अपने लिए नहीं but for God. पर परमेश्वर के He is लिए। going to come soon. वो बहुत जल्दी आएगा। Jesus is going to come soon. यीशु मसीह जल्द आने वाला But है, he is going to pour his spirit on all flesh. पर वो हर एक के ऊपर अपने आत्मा को ढेलेगा। If we stand right with him, अगर हम उसके साथ सही रीति से खड़े हो, by his wounds we were healed. उसके जख्मों से हम चंगे हो गए थे And that healing will manifest in our body. और वो चंगाई हमारे शरीर में प्रकट That होगी healing will manifest in our flesh. और वो चंगाई हमारे शरीर में प्रकट होगी। Time, उस समय God can heal you. परमेश्वर आपको चंगा And कर before, सकता। if you come to God, अगर प्रभु के पास आप आते हैं if you know, और जानते हैं, if you have faith, अगर आपके पास विश्वास every है, time Jesus said, हर समय यीशु ने कहा,
By his wounds you were healed. उसके जख्मों से आप चंगे हो गए थे। Every time Jesus said, यीशु मसीह ने हर समय कहा, your faith healed you. आपके विश्वास ने आपको चंगा किया। That means key is faith. इसका मतलब है कुंजी जो है वो विश्वास Let है। us have faith on तो him. आइए हम उस पर विश्वास Let us करें। present our bodies to him. अपने शरीर को उसे अर्पण करें। From the hair of our head हमारे सर के बालों से to sole of our feet. हमारे पैरों तले Let us give to God. आइए हम प्रभु को दे। Your body. आपका शरीर किसका मंदिर है? परमेश्वर का। So allow God to work on it. तो परमेश्वर को इजाजत दो कि उस पे काम करे। How it should be. वो कैसा होना चाहिए? Like that, take your body. उसी तरह से आप अपने शरीरों को What दो। you should eat. क्या आप खाना चाहिए? What you should drink. क्या पीना चाहिए? How you should comb. कैसे आप बाल बनाना चाहिए? How you should put on your dresses. आपकी ड्रेस कैसा पहनना चाहिए? Everything. सब कुछ For the glory of God. Somebody say amen. परमेश्वर की महिमा के लिए। Nothing for us. हमारे लिए कोई कुछ That's भी why नहीं। in Romans 1:2 he says, इसीलिए रोमियो का पत्र 1:2 में वो कहता है, present your bodies as a living sacrifice. अपने शरीरों को बांधता हुआ जीवित बलिदान करके दो। Amen. आमीन। जीवित बलिदान दो। कैसा बलिदान देने का? जीवित बलिदान। Not offering. He is not speaking about offering. वो Money. अर्पण के बारे में, पैसों के बारे में नहीं कह रहा। Let your bodies be given to. आपका शरीर अर्पण करो। Come on, this is the time. ये समय Why? है। क्यों? Now is so time is so near. क्योंकि समय इतना नजदीक है। He's going to pour His Spirit on you. वो अपने आत्मा को आपके ऊपर You उंडेलेगा will experience it. और आप उसका अनुभव He करेंगे will do the power work. और आप सामर्थशाली काम करेंगे। He's going to pour His Spirit on you. वो अपने आत्मा को आपके ऊपर उंडेलेगा। Your body holy, आपका शरीर जो पवित्र है, acceptable to God. परमेश्वर को ग्रहणीय, Present it to God. परमेश्वर को दो, Give it to God. परमेश्वर को Let not दीजिए। my eyes see what it pleases me. और मेरी आंखें वो न देखे जो मुझे खुश करती है। Let not my mind think what it pleases to me. और मेरा मन वो न सोचे जो मुझे खुश करता है। My own calculations. मेरा खुद का हिसाब किताब। But let me surrender to Him. पर आइए, पर मुझे उसे समर्पित करने दीजिए। Praise God, church. He says, cast all your cares. वो कहता है कि अपनी सारी चिंताएं उसके ऊपर डाल दो। Cast all your cares unto Him. सारी चिंताएं उसके ऊपर डाल दो। He cares for you. क्योंकि वो आपकी चिंता करता Somebody है। say hallelujah. कोई कहे The हालेलुया। power which resurrected Jesus from the dead. वो सामर्थ जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, The spirit which resurrected Jesus from the dead. और वो आत्मा जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, To resurrect our weak bodies. वो हमारे कमजोर शरीरों को पुनरुत्थान देगा। Give ourselves to Him. अपने आप को This दीजिए। body to Him. ये शरीर उसको दे. उसको दे। Earthly vessel. ये जो इस पृथ्वी का जो पात्र है, Give to Jesus. परमेश्वर को दे। Your eyes, आपकी your आंखें, lips, आपके होंठ, your tongue, आपकी जुबान, your smelling organ, आपका सूंघने वाला अंग, your ears, आपके कान, your skin, की चमड़ी, your reproductive organs, आपके पैदा करने वाले अंग, your hands, आपके हाथ, your legs, आपके पैर, your feet, आपके पैर, your thighs, आपके थाइस, your back, आपका पीठ, your front, आपका आगे, your heart. आपका हृदय। I wrote it. मैंने लिखा है For God told me to tell you. क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा आपको बताने के लिए। Your soul, आपका आत्मा, everything, सब कुछ give unto God. परमेश्वर को दीजिए It be kept holy, और वो पवित्र रखा जाए, acceptable, घृणीय, sacrifice to God. घृणीय बलिदान परमेश्वर के लिए। God bless you all. परमेश्वर आप सबों को आशीष That you may दे all experience that resurrection power. कि आप सभी
उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य को प्राप्त कर सके। Do not conform any longer to the pattern of this world. इस दुनिया के तौर तरीके में मत चलिए। He is going to pour his spirit on you. वो अपने आत्मा को आपके ऊपर उंडेलेगा। Each one of you. आप में से हर एक के ऊपर। Just be ready. तैयार रहिए। Close your eyes. अपनी आंखों को बंद कीजिए। If you can't close, अगर आप बंद नहीं कर सकते then just look at him. तो उसकी ओर देखें। He knows everything. वो सब कुछ जानता है। Many of you are stuck in many business, आप में से बहुत सारे कामों में अटके हुए हैं। but God knows your heart. पर परमेश्वर आपके हृदय को जानता है। Church, God knows your heart. हे कलीसिया, वो आपके हृदय को जानता है। Focus on him. उसके ऊपर आप अपना मन लगाइए। Open your hearts. अपने हृदय को, For he is going to pour his spirit on you. अपने हृदय को उसके ऊपर लगाइए। वो अपने आत्मा को आपके ऊपर उंडेलेगा। In all your weaknesses, आपकी सारी कमजोरियों में, as a brother Vijay Magar said, I am going to be in the house of God. जैसे हमारे भाई विजय मगर ने कहा कि मैं परमेश्वर के मंदिर में रहूंगा। Let's prepare our hearts. आइए हमारे मन को बनाएं। It may be late. हो सकता है लेट हो जाए, Don't leave the fellowship. पर इकट्ठा होना छोड़िए मत। Enter in. अंदर आइए। Don't leave it. उस- Gathering of the holy people. पवित्र लोगों का मिलना बंद न हो। Whatever it may cost you, उसके लिए आपको कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, make yourself available. अपने आप को तैयार The रखिए। same spirit वही आत्मा which resurrected Jesus from the जिसने dead यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, will resurrect us वो आपको भी जिलाएगा। from all our weaknesses, हमारी सारी कमजोरियों from all our से, sin, हमारे सारे पापों for से, all our inabilities. हमारी सारी असमर्थता से God is able. परमेश्वर समर्थ है। Be a vessel for God. परमेश्वर के लिए एक पात्र Be बनो। ready for God. परमेश्वर के लिए तैयार हो When He जाओ। comes in the midst of the clouds, जब वो महिमा के बादलों में आए let us be ready तो हम तैयार रहे to be with Him. उसके साथ जाने के लिए। Our God is good. हमारा परमेश्वर अच्छा Father in है। heaven, हे पिता जो तू स्वर्ग में है, I thank for each and everyone here, Lord. मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ पे मौजूद हर एक के लिए। I thank you for your love which you poured on them. हम धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम के लिए जो तूने उनके ऊपर उंडेला। Thank you, Lord, धन्यवाद करते हैं for all your love. तेरे हर प्रेम के लिए। This is Philadelphia Church. ये फिलडेल्फिया कलीसिया है I thank you for removing each and every weakness and sin from our life, Lord. और हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे में से हर एक पाप को निकाल रहा है, Every weakness. हर कमजोरी को। Thank you for making us free. धन्यवाद करते हैं हमें तू स्वतंत्र कर रहा है Thank you, Lord, for the धन्यवाद clutches of करते the हैं enemy can't hold. कि दुश्मन की जंजीरें हमें बांध The नहीं enemy is सकती having हमसे। no power over your church. और दुश्मन को तेरे कलीसिया के ऊपर कोई सामर्थ्य We नहीं है। thank you for preparing us to be Philadelphia Church. और तू हमें, हम धन्यवाद करते कि तू हमें फिलडेल्फिया कलीसिया बना रहा है। Thank you for washing our hearts. हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए Thank you for धन्यवाद। cleaning our mind. हमारे मन को शुद्ध करने के Thank लिए you for धन्यवाद। making us a ready vessel for this end time, Lord. ये अंत समय के लिए तू हमें तैयार कर रहा है। इस Father, I पात्र plead को। the blood of Jesus on everyone. पिताजी हम धन्यवाद करते हैं, हर एक के ऊपर तेरे लहू को कहते हैं। Father, I pray for the pressure of the Holy Ghost. हे पिताजी, पवित्र आत्मा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। Thank you for breaking every chain, Lord. धन्यवाद करते कि हर जंजीर को तू तोड़ रहा है, Every confusion is out. हर एक उलझन निकल जा। I see मैं देख रहा हूँ much more powerful than whatever we prayed. जो हमने प्रार्थना किया उससे बढ़कर I see the
chains breaking. मैं देख रहा हूँ कि जंजीरें टूट रही I है। see the sons of God raising मैं up. देख रहा हूँ कि परमेश्वर के पुत्र उठ रहे I हैं। see the empowerment coming for each one और of मैं us. देख रहा हूँ कि हम सबों के ऊपर उसका सामर्थ उंडेल रहा I है। see we will no more be weak. और मैं देख रहा हूँ कि अब हम कमजोर नहीं Our रहेंगे generational sins are wiped away. और हमारे जो पीढ़ियों के पाप है वो धुल गए। I see the curse is wiped away. और मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो श्राप थे हमारे ऊपर वो उसने मिठा I डाले। see that He has set us free. और मैं देख रहा हूँ कि उसने हमें छुटकारा Let दिया। us present ourselves blameless to God, तो आइए हम अपने आप को दोष रहित उसके सामने समर्पित clean करें to God. और परमेश्वर को हम चिपक जाए। For now the Holy Spirit is going to fill us powerfully. क्योंकि अब पवित्र आत्मा हमें सामर्थशाली रूप से He is going भरेगा to pour His mighty Spirit in days we will see. और हम देखेंगे कि आगे के दिनों में वो अपने आत्मा को Each देगा। one of you आप में से हर एक के are the ऊपर mighty vessel in His hands. उसके हाथों में सामर्थशाली पात्र है You will heal the sick. और तू बीमार को चंगा करेगा। You will move with power, church. हे कलीसिया तुम सामर्थ से In these भरोगे। end days, God is going to supply you. और इस अंतिम दिनों में परमेश्वर आपको You don't need देगा। to worry for anything. आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी Jehovah है। Jireh livta. यहोवा इरे जीवित है। God cared for you. परमेश्वर आपको संभालता है। Trust Him, church. हे कलीसिया उस पर भरोसा करो। Experience Him. उसका अनुभव लो। You will experience His Holy Spirit. आप उसके अनुभव आप उसके पवित्र आत्मा का अनुभव Father, we लेंगे। thank you and praise you हे पिताजी हम धन्यवाद करते तेरी स्तुति करते for हैं each and every one. यहाँ पे मौजूद हर एक के लिए। Thank you for blessing, Lord. तेरी आशीष के लिए धन्यवाद। Thank you for pouring your Spirit, Lord. तेरे आत्मा को डेला धन्यवाद। Thank you for खुदा। preparing our hearts and minds. हमारे हृदयों और मनों को बनाया धन्यवाद। Thank you for choosing each one of us, Lord, धन्यवाद परमेश्वर तूने हम सबों को चुना that you may pour your Spirit कि out. तू अपने आत्मा को डेल It's not by might nor by power, ना तो बल से न शक्ति से but by my Spirit, says the Lord. पर मेरे आत्मा के द्वारा His प्रभु Spirit कहता is है। going to come mightily on you. उसका आत्मा आपके ऊपर सामर्थशाली रूप से You आएगा will witness Him. और आप उसका गवाह गवाह बनेंगे. बनेंगे In Jesus' name, यीशु के नाम में Amen. आमीन Amen. आमीन।